Hi students. Now today's topic is a continue of the last topic, function of management of direct team. You can say direct team. We have completed 5 points of last time, which is I'm going to be repeat now of importance of function of direct team. First is initiate action. Second is integrate efforts. Third is a means of motivation, and fourth is a provide stability, and the fifth is a cropping up with the changes. Now today's we have to complete the rest of the balance 5 points, which is in your textbook page number 24. So now 6 point of importance of directing is effective utilization of resources. So now first of all you know about that. This is a, you can say it's a common point, which is you can use the all importance of function of management, whether it is a planning, whether it is a organizing or staffing or directing, coordination, controlling, everywhere utilization of resources is one of the IMP points, which you have used these points heading of all the functions. But you should be know about that how we are writing in the after the writing the points explanation. मेरा बोलने का मतलब ये है कि फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स जो पॉइंट है वो हर एक के इंपॉर्टेंस आप लिख सकते हो, उसको स्टार बना के रखो. बट आप पॉइंट हेडिंग देने के बाद, यानी यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का पॉइंट हेडिंग देने के बाद आप उस पॉइंट को 4-5 लाइन में किस तरह से एक्सप्लेन करते हो वो थोड़ा सा आपको सीखना है. Now, first of all, you can write resources means man, money, material, market, method. And by the use of these resources, the manager will how to direct with your to our coordinate, subordinate, and with our working staff. So now it is very easy. You can say direction involves assigning the work, duties, giving and responsibility to everyone. Our proper instruction and system are developed to avoid the wastage. That means if director you are become as a manager, and what is your function of directors? That means you will whatever the given the assign the work and duties and responsibility to our subordinate, our working staff. You should be always think about that, avoid the wastage, duplication of efforts, these all the things, and subordinate are guided to utilize resources, and you can give the guideline to instruct to the our subordinate, our working staff, about the man, machinery, method, money, and to maximal possible way to help the reduce the cost and increase the profit. Means how the resources will be effective and reduce the wastage, and you can say reduce the cost, and how the our organization will become a and getting the good profit with the help of this all the resources. So now 7 point is we are writing here importance of directing. In that fifth point we have 6 point utilization of resources. Now 7 point is you can write create team spirit. Now, team spirit is a direction focus on motive. Team spirit means what? This is the one of the point which you can cover in the function or principle of management. So, team spirit is one of the important factor, and you can also this write is as a common point to the everyone. Direction focus on monitoring the subordinate of the group efforts, means whatever the group efforts are given, the director will be monitoring, means watching, and motivate to the our subordinate, and group efforts means team spirits play the very vital means important role in success of business organization and organization than individual efforts. That means you can say one individual efforts, only one manager cannot success the business organization. The manager with along with the subordinates, and it's a team spirit and doing the work together, and team spirit group efforts are there, then achievement and target is getting on time with the help of team spirit, and then you can say success of the organizations. Therefore, the role of
manager as a director play very important role guiding to the subordinate, motivating to the subordinate our employee and achieve the predetermined goal. Means whatever the predetermined given by the top level management, and that will be achieve the goal on time. तो टीम स्पिरिट से क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मिलके काम करते हैं और जो प्री डिटरमाइंड गोल है उसको अचीव करने के लिए, एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, कॉपरेशन मिलजुल के करने के लिए, और ये सब ज़रूरी है और जो कि इंडिविजुअल एफर्ट से नहीं हो सकता. 8th point is explore capability of individual. Explore capabilities of individual. So not capability, that means you know very well every employee, every business organization employee or manager or direct may be affected with the director's importance, because individual capability and potential of anyone with the formal educations and qualifications, with the help of directions, identify and realize the ability of best performance by encouraging and motivating them to just like the leader. See, manager will direct, but direction will be, you can think about that. अभी किसी को पता है कि ये काम करने में कैपेबिलिटी नहीं है, पोटेंशियल उसमें नहीं है, तो आप एज अ मैनेजर हो तो उसको डायरेक्ट करो, इंस्ट्रक्ट करो, उसको कितना भी आप उसको हेल्प करो, आइडेंटिफाई करो काम करने का, पर वो नहीं कर सकता क्योंकि परफॉर्म उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन बराबर नहीं है उसके साथ में, एंड वो मैच नहीं होता. तो ऐसे टाइम में डायरेक्शन करते समय आपको ये भी ध्यान रखना है कि उसको एक्सप्लोर करना है उसके कैपेबिलिटी को. हो सकता है कि शुरुआत में वो काम न कर पाता और लेकिन बाद में फिर वो अच्छे से काम करके रिजल्ट देने लगे और वो काम अच्छे से प्री डिटरमाइंड टाइम पे या प्री डिटरमाइंड गोल को अचीव कर पाए जल्दी से जल्द. तो ऐसे में डायरेक्शन का सबसे इम्पोर्टेंस है कि यू शुड बी वेरी इम्पॉर्टेंट, check with your employees capability and potentials. So today director as a manager as a director also is a leader, so उससे पता चलता है कि क्या बेस्ट परफॉर्मेंस आपने किया, वन वर्कर ने क्या बेस्ट परफॉर्मेंस किया. आप उसको एनकरेज कर सकते हो विथ मोटिवेटिंग, विथ इंसेंटिव ऑल्सो, विथ नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल बेस्ट अगर आप अच्छा काम करोगे एम्प्लॉय को, मैनेजर विल टेक द मीटिंग्स with the help of all the all supervisors and workers. जो अच्छा काम करेगा, जो ऑन टाइम टारगेटेड पहले काम अचीव करते देगा, प्रोडक्शन अच्छे से करते देगा, उसको बेस्ट एम्प्लॉयमेंट या बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड मिलेगा आने वाले दिवाली में, या फिर 10% बोनस उसको ज़्यादा मिलेगा. तो ये सारी चीज़ें देने से करने से क्या होता है, हम एक्सप्लोर करते हैं उसकी कैपेबिलिटी को, और वो एक लीडर ही बोल सकता है, और वो जो लीडर होता है वो मैनेजर होता है, और उसका एक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट डायरेक्शन का एक काम होता है. नेक्स्ट पॉइंट इज 9th वन, इंक्रीज एफिशिएंसी लेवल. यू नो दैट मीन्स गाइडेंस और रहेगा, अच्छे से मोटिवेशनल रहेगा, अपने सबॉर्डिनेट को देंगे तो उसका परफॉर्मेंस जो होगा बेस्ट लेवल का होता है. मीन्स गुड गाइडेंस, गुड मोटिवेशनल्स विल डेफिनेटली अफेक्ट टू द सबॉर्डिनेट, टू द आवर एम्प्लॉयज, वर्किंग स्टाफ फॉर द बेस्ट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस. एंड बीइंग अ लीडर, टीम स्पिरिट होना जरूरी है. क्रिएट द मैनेजर एज वेल एज प्रॉपर टेक्निक एंड सुपरविजन आर यूज्ड. इट वर्क पॉजिटिवली एंड रिजल्ट इज एनहेंसिंग एफिशिएंसी ऑफ होल ऑर्गेनाइजेशंस. मीन्स अगर एफिशिएंसी लेवल बढ़ाना है तो आपको इंस्ट्रक्ट प्रॉपर वे से करना है, मोटिवेट प्रॉपर ढंग से करना है, और ये फंक्शन से और ये इम्पोर्टेंस ऑफ पॉइंट से इंक्रीज होता है एफिशिएंसी पूरे होल ऑर्गेनाइजेशंस का, क्योंकि पॉजिटिवली वर्क सामने दिखता है. और अडल्ट काम करते समय मैनेजर को प्रॉपर टेक्निक भी बताना है और उसको सुपरवाइज भी करना है कि जो मैंने टेक्निक बताया है उस ढंग से काम हो रहा है कि नहीं. And last point is cooperation. That means cooperation is necessary for smooth flow of organization activity. It should be created by managers
and directors from top level and bottom level of management, healthy cooperation, teamwork and higher efficiency level lead to attainment of the goal. अभी कोऑपरेशन इज ये भी एक कॉमन ही पॉइंट है, आप सब में ले सकते हो. विदाउट कोऑपरेशन कोई चीज़ होता नहीं है, चाहे वो प्लानिंग करो, चाहे ऑर्गेनाइजिंग करो, चाहे डायरेक्टिंग करो. ये इंपॉर्टेंस, ये जो कोऑपरेशन वर्ड है इसको भी स्टार बन जाते रहो. कोऑपरेशन आपको याद आएगा कि पॉइंट इसमें भी है. देखिए एग्जाम में जो भी बोर्ड के एग्जाम में 10 मार्क के लिए आता है तो आपको 8 पॉइंट या 9 पॉइंट लिखने होते हैं. उस टाइम पे जो स्टार पॉइंट है, जो हर एक लिए कॉमन है, उसे अलग से बना के रखो. अब यहाँ पे कोऑपरेशन जैसा आएगा, थोड़ा सा लाइन चेंज हो जाएगा लिखते समय, और प्लानिंग में कोऑपरेशन का लाइन चेंज हो जाएगा. अब यहाँ पे कोऑपरेशन नेसेसरी क्यों होता है? क्योंकि स्मूथ फ्लो ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. आप डायरेक्टिंग लेवल पे हैं तो मैनेजर विल भी डायरेक्ट अच्छे से करेगा, तो काम अच्छे और आसान तरीके से करेंगे वर्कर, सुपरवाइजर एंड वर्किंग स्टाफ. एंड इट शुड बी क्रिएट बाय द मैनेजर, और वो मैनेजर को उसको क्रिएट करना पड़ता है. जैसे आज पिक्चर बनती है तो डायरेक्टर बताता है कि इसको इस ढंग से आप रोल फाइंड आउट करो, इस ढंग से आप ऐसा प्रेजेंट करो पर्दे के ऊपर कि लगना चाहिए कि ये रियल्स हो रहा है, ये सही मायने में होता है. तो फिर उस बात को देखते हीरो हीरोइन उस हिसाब से एक्टिंग करते हैं, तो क्रिएट करता है क्या, कॉन्फिडेंस एंड क्रिएट करता है आपका कोऑपरेशन होता है डायरेक्टर का. तो डायरेक्टर ऑफ फ्रॉम टॉप लेवल टू बॉटम लेवल मैनेजमेंट, हेल्दी कोऑपरेशन, टीम वर्क, हाईली एफिशिएंसी. और जो भी हेल्दी कॉर्पोरेशन रहेगा, हेल्दी कॉर्पोरेशन मतलब अगर अच्छे से मिलजुल के लोग काम करेंगे, टॉप लेवल, लोअर लेवल, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, तो हायर एफिशिएंसी लेवल बढ़ेगा और अटेनमेंट ऑफ गोल यानी अचीवमेंट ऑफ गोल ऑन टाइम में हो सकता है. तो ये सारे पॉइंट्स आपको मैंने आज एक्सप्लेन किए. 10th पॉइंट था कोऑपरेशन. तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये आप लोग अपने टेक्स्ट बुक में से देखकर अपने ओन वर्ड्स में बनाकर ऑल 10 पॉइंट्स मीनिंग, डिफिनेशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग लिख के आप मुझे व्हाट्सएप पे भेजो और ग्रुप पे ही भेजो, तो इट विल टेक द अटेंडेंस. अगर ग्रुप पे नहीं भेज सकते तो पर्सनल पे भेजो. डेली अटेंडेंस का रिकॉर्ड यहाँ पर नोटबुक में लिखा जाता है. जिसका मेरे पास इमेज आया है, ये जो मैंने होमवर्क लिखने के लिए दिया है, उसका ही अटेंडेंस मेरे पास है. पुअर अटेंडेंस माना जाएगा. ये रिकॉर्ड नेक्स्ट मंथ में आएगा कि ऑनलाइन के बच्चे वीडियो तो देखते हैं, सुनते तो हैं, पर वो लिख के नहीं भेजते. लिख के भेजोगे तभी आपका अटेंडेंस माना जाएगा. लर्न करो, रीड करो और अपने अटेंडेंस को इम्प्रूव करो, क्योंकि हो सकता है कि ब्लैक लिस्ट में नाम आ जाए. तो प्लीज़ यू कैन गो थ्रू ऑनलाइन टीचिंग ऑन प्रॉपर वे. और जब तक एडमिशन का सर्कुलर आता नहीं है आप कॉलेज आओ मत. जैसे ही सर्कुलर आता है आपके 12वीं के एडमिशन का, आई विल इन्फॉर्म यू. और स्टे एट होम, पढ़ाई करो, पोर्शंस आगे बढ़ रहे हैं और 2-4 दिन के अंदर ये सेकेंड चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, तो नेक्स्ट चैप्टर की तैयारी चालू हो जाएगी और पोर्शंस को आगे बढ़ाना है, स्टडी करना है. 12th इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट ईयर फॉर यू. सो at least half an hour also, half an hour or 10 minutes also is very important. ऑलरेडी आप लोग 10वीं पास हो, मेरिट में आए हो, अच्छे मार्क्स लाए हो, कम मार्क्स लाए हो. अगेन वन चांस given by the board and given by the God and given by your parents to achieve above 80-85%, 90% of term in your board exam. Now next lecture सैटरडे को नहीं रहेगा. गणपति भगवान अपने आपके सबके घर में आगमन कर रहे हैं, तो गणपति बप्पा मोरया, मंडल मूर्ति मोरया, और सभी लोग मिलकर प्रे करें कि कोविड-19 का जो महामारी, जो बीमारी है, विल रिमूव एज अर्ली एज पॉसिबल और हम लोग फिर से कॉलेज में जाएं, फिर से लेक्चर में बैठें और हम लोग फिर से वैसा ही अपना लाइफ जिए जैसे पहले हम लोग जीते थे. So wish you all the best and happy Ganpati Chaturthi, Ganpati festival are coming. Saturday is a holiday, Sunday is again a holiday, Monday again you will get the lectures, my YouTube video. Monday or Tuesday, any days you will get my lectures and with the next function of management. So please stay home. Thank you very much and do study.